कभी कभी लगता है ये स्मॉल व्हीकल्स जो आजू बाजू में होते हैं तो कभी कभी लगता है कि कुछ टकरा जाए या फिर ब्रेक ना लगे, इतनी ट्रैफिक होती है तो कभी कभी डर लगता है। जो सेफ्टी रहती है बढ़ाना चाहिए, जैसे कि बस के रिगार्डिंग में, और रोड की भी कई कई करती है। सबसे पहले तो सारे बसेस मेंटेनेंस प्रॉपर करनी चाहिए ताकि मतलब जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए। वही अभी मैं सुना कि एक्सीडेंट हुआ, उसने कंपनी के ऊपर डाल दिया, मुझे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया गया। If you are a Mumbaiker, then you might definitely know about the best bus. It's affordable, it's used by the middle class. It's the second lifeline of every Mumbaiker after the suburban railway network. But this best bus services are under scrutiny since last few days because of the frequent accidents that are taking place. So you might have heard that on July 10, the best bus rammed into 14 vehicles while negotiating a turn in Mumbai's Andheri. So these repeated accidents are happening. In this case, in Andheri's case, the bus driver claimed that the brakes had failed. The police and the public transport undertaking said they are investigating whether a mechanical defect, human error or another factor caused the crash. So 4 people were injured in this best bus accident. And this accident once again puts the spotlight on the best's wet lease model, which has come under scrutiny following a series of crashes involving privately operated buses running on the behalf of undertaking. This was the second major accident involving a wet lease best bus in just over a month. On June 8, an electric best bus lost control near the Plaza Cinema in Dadar, crashing into several vehicles and killing one person while injuring 6 others. With a series of accidents happening repeatedly in Mumbai with regards to the best buses, we spoke to Mumbaikars to find out what do they think about the safety inspection. Now, while the government is spending crores of rupees on various infrastructure projects, developmental projects, Mumbaikars are asking a simple question: when the safety will be prioritized in the best bus which is used by them frequently on a daily basis. They say that the technical inspection should happen frequently, the driver should be given training, and the safety should be prioritized. Listen to the reactions of the common people from Mumbai. Not really. I don't think it's safe for Mumbaikars because like it's happening with their life and that caused 2 days of actually. So I think that's very good. हाँ, of course maintenance और safety standards आप इतना कैजुअली ले रहे हो, मतलब कि ब्रेक्स वगैरह ये तो सब पहले ही सब कुछ देखना चाहिए और सब करना चाहिए। जो अननेसेसरी नहीं कहूँगी, मतलब जो बहुत आगे का है वो सब के लिए पैसा लगा जा रहा है, बट ये जो डेली लाइफ का है, लोकल में भी कितने लोग ट्रैवल करते हैं, लोकल में भी अब सेफ़ नहीं रहा है कुछ तो चीज़ें, और बस में भी ये सब हो रहा है, तो ऑफकोर्स इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस बहुत हेवी होती है और बहुत बिग होती है, तो मुझे कभी कभी लगता है ये स्मॉल व्हीकल्स जो आजू बाजू में होते हैं तो कभी कभी लगता है कि कुछ टकरा जाए या फिर ब्रेक ना लगे, इतनी ट्रैफिक होती है तो कभी कभी डर लगता है। मॉनसून के टाइम कितना डेंजरस हो सकता है? मानसून के टाइम तो बहुत होता है क्योंकि स्लीप हो सकती है बस, कुछ भी टायर फेल हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है। और मुंबई में तो 2 ही ऋतु होते हैं, एक तो मानसून या फिर समर्स, तो ऐसा लगता है कि मानसून में रिस्क है। करना चाहिए उसके अंदर, और जो सेफ्टी रहती है बढ़ाना चाहिए, जैसे कि बस के रिगार्डिंग में, और रोड की भी कई कई करती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि रोड में जो बड़े बड़े खड्डे वगैरह है वो सब चीज़ों को क्लियर करे, ध्यान दीजिए। और जैसे कि बसेस में और भी कुछ सेफ्टी की चीज़ें हो सकती तो वो ऐड करके उनको चलाइए। जिम्मेदार तो अभी मैं ठहरा नहीं सकता किसी गलत, पर शायद से उनसे गलती भी हो गई रहेगी। तो यही मैं कहूँगा कि अनसेफ कुछ ना करिए, जो भी करिए सेफ्टी से ही करिए। तो अभी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग में भी जो ड्राइवर है उसे ही पता है कि कैसा, किस वजह से ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो लानी चाहिए, वक्त के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए, और ज़माने के साथ तो बस भी चल रही है तो बस को भी चेंज होना चाहिए, जो अंदर के इंटरनल पार्ट्स है उसको भी चेंज होना चाहिए। करना चाहिए मेंटेनेंस थोड़ा, बहुत करना चाहिए एक्चुअली। बहुत बार बसेस बंद पड़ रही है बीच बीच में ही, और मतलब मैं भी एक दो बार ट्रैवल कर रहा था तो बीच में एक दो बार बस बंद भी हो गई थी एक दो जगह पे, तो वहाँ से फिर वापस दूसरी बस पकड़ना भी बहुत ये होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आती नहीं है, और जो आती है वो पहले से ही भरी होती है। सबसे पहले तो सारे बसेस मेंटेनेंस प्रॉपर करनी चाहिए, ताकि मतलब जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए। वही एक्चुअली वैसे तो नहीं, क्योंकि ड्राइवर्स चलाते हैं, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ मतलब अभी मैं जो भी बस से ट्रैवल करता हूँ वो सब अच्छे से ही चलाते हैं। सेफ्टी के लिए पहले तो पैसेंजर ने खुद का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ड्राइव बस में चढ़ना नहीं चाहिए, कि वो मेजर कंसर्न है। लोग जम करके चढ़ते उतरते, कंडक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, और कंडक्टर और बस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग थोड़ा लेट हो रहे, जस्ट फ्यू सेकंड दूरी पे है तो वो मिरर में देख के उनको रोकना चाहिए। कंडक्टर ने भी ध्यान देना चाहिए तो लोग टाइम पे बस कैच कर सके, मिस नहीं हुए उनकी बस, उनका रूटीन वर्क अफेक्ट नहीं हुए। बिकॉज वो कंसर्न है, चेकिंग करना चाहिए उनको। उनका जो नींद है, मतलब स्लीपिंग, वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो ड्राइविंग करते टाइम नैप आ गया तो उससे भी एक्सीडेंट के चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सेफ तो है, प्रोवाइडेड वी फॉलो फुल लॉ एंड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ओके, कंपेयर टू प्राइवेट मेरे ख्याल से सेफ है ऐसा। लेकिन उनको ओवर टाइम भी इतना नहीं देना चाहिए कि ओवर टाइम करते जा रहे, और उसकी वजह से अभी मैं सुना कि एक्सीडेंट हुआ, उसने कंपनी के ऊपर डाल दिया, मुझे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया गया, और वो ओवर टाइम की वजह से उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो वो भी एक कंसर्न है। बस में ज़्यादातर अभी क्या है कि ऑल कंडक्टर एंड ड्राइवर्स आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि मेरा कुछ सर्विस अफेक्ट होगा या कुछ फ्यूचर में प्रमोशन रुकेगा, तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए दे आर लिस्ट बॉदर, उनको कुछ पड़ी नहीं है। हाँ, तो वो BST ने देखना चाहिए कि एटलीस्ट उनको रेगुलराइज करे, तो उनमें डर का माहौल रहेगा। ओके, अब उनका परमानेंट जॉब नहीं है तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, मेरे जॉब आज है कल नहीं है, इधर BST में नहीं तो मैं प्राइवेट में जॉब कर लूँगा सेम, इसलिए को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बस के ड्राइवर है, कंडक्टर है, सब विदाउट ट्रेनर है, विदाउट ट्रेनिंग वाले। पहला बस के अंदर क्या होता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, ड्राइवर को भी ट्रेनिंग दी जाती, ड्राइवर को, कंडक्टर को भी ट्रेनिंग दी जाती। आजकल कोई ड्राइवर या कंडक्टर में कुछ नहीं रहते, ट्रेनर लोग हैं या ट्रेनिंग वाले हैं, उनको कुछ बोलो तो उल्टा ही बोलते, और गाड़ी ऐसा चलाते कि उनके जैसा हवाई जहाज चला रहे। सही में मैडम, हवाई जहाज चला रहे। इनको पब्लिक को साथ पब्लिक को लेके जा रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट हो तुम, तो पब्लिक का जान का भी हिफाजत करना मांगता है ना, क्या तुम्हारा ही चलाएगा? हम लोग को जो जैसा है, क्या अपन बोलने जाएंगे, जाओ कंप्लेंट करो बोलते सीधा, इतना ये लोग एडवांस बोलते, और पब्लिक का तो ध्यान नहीं देते। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से ही ऐसा हो रहा है। ये तो क्या ड्राइविंग का सिर्फ लाइसेंस रहता है उनका, कुछ यही तो देते नहीं है, ट्रेनिंग तो कुछ देते नहीं है, ऐसे ही बस चलाने के लिए देते हैं, वो कैसे भी चलाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। पहला कैसे बेस्ट वाले के हाथ में था, तभी सब ये कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे उनको 6-6 महीना, उसके बाद ही बस मिलता था उससे। अभी ऐसा तो है नहीं, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस लेता है और चलाने के लिए देर मिलता है उसको, वो अभी कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा तो यही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हुआ तभी से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उनको ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है, ट्रेनिंग के बिना बस हाथ में नहीं देना चाहिए उनको, वो तो बहुत धोखादायक है। ये लोग करना चाहिए, पहले से कटिंग करना चाहिए था, जो गटर लाइन है वो बराबर करना चाहिए, वो भी बराबर नहीं, वो ज़रूरी करना है। सेफ्टी तो है, तो अभी चलाने वाला और आगे जो आता है वैसा है ना, तो कोई जानबूझ के तो नहीं करता है ना। ये बात हमारे खाली एक ही सवाल है कि बस टाइम पे आती नहीं, बस 50 नहीं आती तो 2-2, 3-3, 4-4 बस आती।